आपने इतना इंस्पायर किया है हम सबको, जो आप काम कर रहे हैं, सो इंस्पिरेशनल है ना। Shalu has been working on this. सबसे पहले मैं JSPL फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती शालू जिंदल जी से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं और हमें JSPL फाउंडेशन के विजन और राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान के मकसद के बारे में बताएं। And through our CSR initiatives, we have impacted around 1 million lives across the areas of our operations. Swayam Siddh Samman is one such unique initiative from the foundation that we are proud of. Launched in March last year in Chhattisgarh, this Samman honors people for their contribution to particular corporate social responsibility initiatives of the JSPL Foundation that they have been a part of, how they have taken it forward and how it has changed their life. JSPL Foundation then held such similar Swayam Siddh Samman awards in the states of Odisha and Jharkhand in May and July 2015 respectively. After successfully conducting these award ceremonies at the regional level, we decided to take this initiative national, and thus was born the Rashtriya Swayam Siddh Samman. Applications were invited from across India, and it was no longer restricted to just the areas of our operations. All the winners, and I am confident that the Rashtriya Swayam Siddh Samman will form a human chain that will go a long way in recognizing talent and work towards the betterment of their communities and the development of the nation. I conclude with the famous words of Stephen Hawking, and I quote, "Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious, and however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up." Thank you, dear winners, for not giving up and inspiring us to believe in the possibility of our dreams. As we felicitate these real heroes and take inspiration from their work, I hope and dream that together we will take India ahead and CSR initiatives. A very warm and hearty welcome to all of you, and especially all the awardees of the Rashtriya Swayam Siddh Samman who have come from different corners of the country, and I think each one has a very, very special story, a very special contribution that they have made through their efforts in the face of adversity, which we can all. ना ये समर्थन परिवार से मिलता है, ना ये दोस्तों से मिलता है, ना किसी तीसरे व्यक्ति से मिलता है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमें सब कुछ जो मिल गया है, this is the time to return to the society and it is the most सबसे कठिन। हम अभी भी लगे रहते हैं कि मुझे आगे के लिए क्या चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए। A person who can think to give back to the society is possibly। कई लोग कानून की बात करते हैं, जब गाड़ी में मैं जाता हूँ और कोई शीशा में ऐसे ठक 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 कर कुछ पैसे मांगता है, तो मैं कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता हूँ। कभी हाथ में कुछ खाने का सामान हो तो कुछ देने का, और मैं ये देखता हूँ कि शायद कानून के लिए सही नहीं है। हाउ कैन यू प्रमोट समवन और हाउ कैन यू मेक सपोर्ट अ बेगर, बट मेरे लिए वो चिंता नहीं है। मेरे लिए वो चिंता है कि मेरी जो 2 बेटियां मेरे गाड़ी में बैठी रहती हैं, वो शायद आजकल के ज़माने में कंपैशन हैज़ गॉन आउट ऑफ द सिस्टम, तो कंपैशन उन तक पहुँचे, वो देखे कि पिताजी अगर देते हैं तो शायद दूसरे का कष्ट समझना भी आज के वातावरण में बड़ा कठिन है। व्हाट यू डू विल कम मच लेटर,
What you will do will come much later, वो तो आप बाद में करना, लेकिन किसी इंसान के प्रति, समाज के प्रति आपकी संवेदना हो, ये भी अगर आपके भीतर भावना आ जाए आपके जीवन काल में, तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे अगले अवॉर्डी से आपका परिचय करवाते हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन। ये तेलंगाना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। युवा टैलेंट को निखार कर भविष्य के चैंपियंस तैयार कर रहे हैं। Please welcome on stage Mr. K. Sai Baba, the brain behind this great initiative. मैं श्रीमती शालू जिंदल से भी अनुरोध करूंगी कि वो भी कृपया मंच पर आए। ये फंक्शन आप स्माइल करके बताओ एक बार। और स्माइल करने से कुछ पैसे नहीं लगते, पैसे लगते है अपना हेल्थ प्रॉब्लम होता है। स्माइल करते, मैं कैसा स्माइल करते बात कर रहा हूँ, बात कर रहा आपको दोस्तान ज़्यादा होते। अब सीरियस है तो दोस्तान नहीं हो, दोस्तान ज़्यादा रहना, अच्छा रहना, अपन स्माइल करते बात करना, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। स्माइल ही वही मेडिसिन है, दूसरा टैबलेट नहीं। आदमी को स्माइल करना कभी भी। ओके ओके, अब सीख। SCF खेलों के माध्यम से भारत निर्माण परियोजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसकी पहुंच निम्न आय संस्थानों में लगभग 25,000 सुविधा विहीन बच्चों तक है। SCF ने क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों, अनाथालयों और स्लम क्षेत्रों में खेल उपस्कर उपलब्ध कराए और बुनियादी खेल अवसंरचना का सृजन किया।
इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास भी है। स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन हैदराबाद को विकास के लिए खेलों के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2015 प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री के साई बाबा, फाउंडिंग सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन, श्री के साई बाबा।